CATC, but I will try to take in 30 minutes basic idea so that you can have a great idea how the system is working. Okay, I will take only 30 minutes, probably 20 to 30 minutes, because my time is out. I was expected to complete the topic before 16:30, but it is now 16:26. Is there any problem to anybody? Whether all are comfortable? Yes, sir. Yes, sir. Okay. How the system works? Basically, this is the block diagram you might have taught by someone else in the training. But this is the basic system of the Maru DME 320. How the system works. In LPA, low power DME, the SPA card is not available. How the system works, you should have the idea. The supply part is being taken in the way AC or 2 means we are using 220 volt DC or 230 volt DC. Two AC DC cards are there. And the function of these are to generate the voltage for the battery as well as for the equipment. The total equipment was 24 volt. It is shown at 27. You might be seeing in the system 27 volt. This is the voltage at which we are using. And for SPA, the DC converter is using 50 volt. Okay, LPA or SPA, it is generating. For LPA, it is generating 27, or SPA, it is generating 50 volt. So DC, the function of the DC card is to generate 50 volt. This is the DC supply part. If the voltage the voltage remain 27 for the operation of the equipment, if it is going below 19.7 volt, even in the when you are using the battery or something else, the system will turn it off. Okay. The charging section keep on charging the backup batteries. If AC is not available, the backup battery will put the voltage in the system, and the system keep on working as if the AC is available. Means the operation will remain same. Both the transmitter keep on working with the battery. Whereas a single battery is sufficient to run the system. Means we are having two batteries. We are having ports. We can say we are having the port supplies. Means we are having back to backup and then backup to backup again. This is the way how the supply system is working. Now, LCU is the main heart of the system. I have already told you what you are giving in the input or instructions you are giving to the system are being given by the LCU. These can be done by either by the RCMU or RMU or RMMS or by the LMMS. Means you all are you are working in the NAVIDS, I think. So you are familiar with LMMS, RMMS, RMU, and RCMU. The system is working in LCU, local control unit. Local control unit is connected to all parts of the system to give the instruction and to receive the instructions. Means जो आपका ribbon cables हैं वो सारे system से connected है LCU के through, so that the commands are given by these arrangements. तो ये monitor से भी connect है, RFG से भी connect है. The function start like that. You are having the idea this aircraft is giving the call, then it is taken by the main antenna. The main antenna is transmitting as well as the receiving both at the same time. Most of the time it remains connected to the receiver. Only when the system has to transmit its call, the reply that is being generated by the system, at that time the signal pulse comes and connected to the antenna for the transmitting purpose. And most of the time and maximum time the system remains connected with the receiver only. The monitor is also there. We keep on monitoring the system. Monitor cables are there. We are having this type of arrangement. The same antenna is being used for the transmission as well as the receiving. Then the signal comes to the monitor part. It is clearly shown here. And the signal received from the aircraft is taken by the RXU. RXU से ये जाता है आपका TCU में. TCU इंस्ट्रक्शन देता है जिससे TXU चलता है. TCU में सॉफ्टवेयर और सारी चीजें जो कंट्रोल करती हैं हाउ द सिस्टम वर्क्स. वी विल टेक इट इंडिपेंडेंटली वन बाय वन. तो ये आपकी पल्स बनाएगा, आपका शेप देगा, फ्रीक्वेंसी सेट करेगा, आपका जो जिटर है मतलब जो आइडेंटिफिकेशन कोड है किस एयरक्राफ्ट का, उसके अकॉर्डिंगली पल्स जनरेट करके रिप्लाई जनरेट करेगा जो कि TXU के पास जाएगा. TXU LPA के थ्रू, SPA के थ्रू आपको वापस से DPU को देगा, DPU उसको ट्रांसमिट कर देगा. इस तरह से पूरा. Then the same system, what we are transmitting has to be monitored. So coupling coils are being connected at the antenna. They keep on coupling, means they are taking the signal from the feedback and giving it to the system. And these are being monitored by the monitoring system.
it will give the feedback, negative feedback, positive feedback, and advise the RFG, TCU, and all the card to adjust accordingly how the system has to work. Duplexer के अंदर क्या है, जो फंक्शन है duplexer यूनिट का वो है सिस्टम चेंज ओवर ट्रांसफर विथ कॉन्फ़िगरेशन एंड और ओड मोड, सिस्टम शटडाउन, then output power level measurement and injection of DME test interrogation signal from the monitor. ये आप देख सकते हैं, ये मेजर फंक्शंस हैं डीपीयू के। मींस आपकी जो सिग्नल जा रहा है उसको मॉनिटर करना, इस और जो इंजेक्शन का टेस्ट सिग्नल का इस मॉनिटर के लिए यहाँ पे करेगा। आउटपुट सिस्टम पावर जो मेजरमेंट है वो यहाँ होगा। अगर आपकी ओपन है तो सिस्टम को शट डाउन करेगा, चेंज ओवर करेगा, वो सारे काम में डीपीयू का डुप्लेक्सर करेगा। ठीक है, ये होगा डुप्लेक्सर। डुप्लेक्सर के बाद अगला आता है आपका पार्ट रिसीविंग यूनिट। ठीक है, सेकंड रिसीविंग यूनिट हम हर एक चीज के बारे में डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। वी विल डिस्कस मेजर फंक्शन दैट आर बीइंग डन बाय रिसीवर, हाउ इट इज बीइंग डन वी विल नॉट टेक इट। देन सिग्नल गया रिसीवर के पास, तो रिसीवर क्या करेगा, डिटेक्शन एंड रिकवरी ऑफ द इनकमिंग इंटरोगेशन पल्स पेयर। उससे पता चल जाएगा किस एयरक्राफ्ट से जहाज, किस एयरक्राफ्ट की कॉल आ रही है, क्योंकि उसका जो जिटर है वो ले लेगा उस डिटेक्शन एंड रिकवरी ऑफ द इनकमिंग इंटरोगेशन पल्स पेयर। देन डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ऑन चैनल एंड ऑफ चैनल वीडियो, then adjust the receiver, adjusting the receiver sensitivity means AGC वगैरह देके एडजस्ट करेगा, और उसकी डायनामिक रेंज जो है वो एडजस्ट करेगा। यानी सिग्नल चाहे 120 नॉटिकल माइल से आ रहा है चाहे 5 नॉटिकल माइल से आ रहा है, वो उसको सेम तरह से ट्रीट करेगा। उसकी जो डायनामिक रेंज है AGC वो उसको एडजस्ट करेगी। ये रिसीवर का काम है। देन हम आते हैं, सिग्नल जाएगा TCU के पास। उसके बाद फंक्शंस क्या है TCU के, कार्ड वाइज हम लेके चल रहे हैं क्योंकि ये क्या करता है कि सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन ऑफ द रिसीव सिग्नल फर्स्ट थिंग, देन डिकोडिंग ऑफ द रिसीव पल्स पेयर मीन जो आपका सिग्नल आया उसको सैंपल उसके लिए क्वांटाइज किया, टैप शेप बनाया, उसको डिकोड किया इससे क्या सिग्नल आया था। देन सिस्टम डिले इसमें ऐड करेगा, ई को सुप्रेस करेगा, आपका जो लॉन्ग इको और शॉर्ट इको है वो यहाँ पे डाला जाएगा। देन जनरेशन ऑफ द पल्स मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, देन उसके बाद है मेजरमेंट एंड एडजस्टमेंट ऑफ द रिप्लाई पल्स पेयर, देन जनरेशन ऑफ स्क्विटर पल्स पेयर एंड आइडेंट पल्स पेयर, load limiting by controlling receiver sensitivity, control of station frequency generation for both transmitter and receiver। उसके अलावा डायग्नोसिस फंक्शंस मींस ये सब सॉफ्टवेयर में कांस्टेंट लिखे रहते हैं। उसके हिसाब से जो कि जो आप सेटिंग डालते हो वो सारी की सारी इसके अंदर लिखी रहती है। हर स्टेशन की अलग होती है, उसके जो आपकी सेटिंग्स होंगी उन सेटिंग्स के अकॉर्डिंगली वो सारे के सारे फंक्शंस करेगा TCU। तो TCU इसका हार्ट है। TCU में अगर प्रॉब्लम आती मतलब अगर आपके ट्रांसमिटिंग पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो मैक्सिमम चांसेस है कि प्रॉब्लम TCU कार्ड के अंदर आएगी, बिकॉज दिस इज द सॉफ्टवेयर पार्ट। ऑल द एडजस्टमेंट जो आप पोर्ट वगैरह एडजस्ट करके आप सेल्स या दूसरे DME में करते थे ASI में, वो सारे के सारे यहाँ सॉफ्टवेयर के एडजस्टमेंट्स हैं, वो इस कार्ड के अंदर हो रहे हैं। ठीक है, कैसे कर उसका ये ब्लॉक डायग्राम है, हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम लिमिटेड टाइम के साथ हैं। मैंने एक PLI कोर्स कराया था अहमदाबाद के अंदर, उसके अंदर ये OPS का DME का कोर्स हुआ था, उसका मटेरियल था। वहां से मैं केवल कुछ आपके पास आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो मेन पार्ट्स थे उसके। फंक्शनल डायग्राम है मॉनिटर यूनिट का। ये आपको आइडिया होना चाहिए कि जो मॉनिटर क्या करता है, ट्रांसमीटर से सैंपल लेता है DPU के अंदर से, ठीक है, और मॉनिटर को देता है, और सैंपल एंटीना से भी लेता है। ठीक है, पैरामीटर मेजरमेंट्स एंड अलार्म्स का काम सारा का सारा इसके अंदर होता है, और उसके अलावा इंटरोगेशन टाइमिंग एंड मॉड्यूलेशन जनरेशन करता है, और कोऑर्डिनेट किसके साथ करता है, मॉड्यूलेशन टू RFG के साथ, LCU के साथ और अदर मॉनिटर्स के साथ। ये इसका फंक्शनल वर्क है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि DMA कंट्रोल क्या क्या है। LCU जो है सिस्टम का हार्ट है, अगर ये फेल हो गया तो आपका सिस्टम फेल हो जाएगा, क्योंकि ये किस तरह से कर रहा है आप देखिए, दोनों मॉनिटर से कम्युनिकेट कोऑर्डिनेट करता है। TCU दोनों के साथ काम करता है। CSP both CSPs are working with the LCU। LMS PC is connected with the LCU। AC/DC unit is also connected with the ये LCU। even though external ident is
given to the LCU only through network, temperature sensor, AC/DC status, RMMSPC, LCMU, changeover control, and fan control, ident control. All are the input and output of the control system of the DME, and these are being handled by the LCU only. LCU is the heart of the system basically. Then 43, then 20. TCU का हमने वर्किंग देख ही लिया। सबसे मेन कार्ड है इसका TCU सिस्टम का। हाउ द सिस्टम वर्क्स TCU का वो सारी चीजें डायग्राम के अंदर हैं। आप इसका स्नैप ले सकते हैं, आपको TCU समझ में आ जाएगा, क्योंकि सबसे मेन TCU रहता है। आप अपने सिस्टम पे इसका स्नैप लेके रख सकते हैं ताकि आप समझ सकें हाउ द TCU वर्क्स। रिसीवर के हमने डिस्कस कर ही लिया फंक्शन, ड्यूप्लेक्सर हमने डिस्कस कर लिया। तो बेसिकली हमने मॉनिटर डिस्कस कर लिया। RFG क्या है बेसिक, अगर आपने किसी ने इंटेरोगेटर देखा हो, ASI का DME किसी ने काम किया है सिस्टम पे, ASI पे, उसके अंदर एक सिस्टम होता है, सॉरी GCL में टेक्स्ट इंटेरोगेटर एक कार्ड होता है। इट कीप ऑन जनरेटिंग द पल्सेस सो दैट सिस्टम शुड कीप ऑन वर्किंग, उसका AGC सिस्टम चालू रहे और अचानक कई सारे एयरक्राफ्ट आने पर बहुत सारा करंट ना देना पड़े और आपका सिस्टम प्रोटेक्ट रहे। तो इसके अलावा आपका सिस्टम लाइव है ये चेक करने के लिए भी क्या है कि कुछ PRF को पर्टिकुलरली, जैसे क्या बोलना चाहिए, कुछ गॉसियन पल्सेस वो ट्रांसमिट करता रहता है, PRF 700 के आसपास वो करता रहता है, ताकि आपको ये लाइव रहे कि सिस्टम आपका लाइव है, आपको पता चले और आपकी मॉनिटरिंग काम कर रही है कि नहीं कर रही है वो भी पता चले। तो इसके लिए क्या करता है कि जो PRF जनरेट करता है वो भी ये आपका PRF जनरेट करता है, यानी इस सिस्टम में RF भी जनरेट करता है। और रिसीविंग पार्ट और LPR में डिस्कस किया है, लो पावर एम्पलीफायर जो आपका TCU सिग्नल बनाता है उसको 100 वाट तक के लेवल पे ले जाने का काम LPA करता है, उससे ऊपर के लेवल पे ले जाना है तो HPA करता है। और ड्यूप्लेक्सर के अंदर सारे कनेक्टर्स वगैरह हैं, एटेन्यूएटर्स हैं, ये सारे मेजरमेंट और ट्रांसमिशन से पहले जो अपना काम है वो सारा का सारा DPU के अंदर होता है। उसके अलावा एंटीना है, एंटीना का आपको आइडिया है ही कि ये बहुत काम कर रहा है एक साथ ही, मैक्सिमम टाइम ये रिसीव के साथ कनेक्ट रहता है और माइक्रो सेकंड्स के लिए ट्रांसमिट के साथ कनेक्ट होता है। और जब इसकी पल्स आ जाती है तो क्या करता है, डेड टाइम 60 सेकंड का होता है, उस दौरान कोई नई पल्स नहीं लेता। इस तरह से सिस्टम पूरा का पूरा काम करता है। दिस इज द फंक्शनल वे हाउ द सिस्टम वर्क्स। इसके अलावा और किसी को कुछ क्वेरी हो तो हम और डिस्कस कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर, थोड़ा सा RFG के कार्ड के बारे में ब्रीफ बता देंगे RFG का हाँ एक सर। सेकंड में देखता हूँ RFG इसमें है कि नहीं है, नहीं तो फिर ढूंढना पड़ेगा कहाँ है, क्योंकि मैं इसके साथ प्रिपेयर होकर नहीं आया था कि मुझे जरूरत पड़ेगी इसकी, अदरवाइज मैं स्नैप्स लेके आता अलग से। देखिए ये है RFG का कार्ड, ठीक है। RFG में इनपुट आती है, किससे आती है, मॉनिटर से, और आउटपुट जिसकी DPU को भी जाती है। अब ये क्या करता है, ऑसिलेटर इसमें है जो RF फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है स्टेशन की, ठीक है। इसमें यहाँ इसको मॉड्यूलेट करेगा, एम्पलीफाई करेगा, और ये वेरिएबल आपका VCO जो होता है वो वाला काम है, एम्पलीफाई करके DPU को दे देगा। ये फ्रीक्वेंसी कीप ऑन जनरेटिंग करेगा। देखिए RFG मॉनिटर मॉड्यूल कॉन्स्टिट्यूट द मॉनिटर सेक्शन। पहली चीज, आपका जो मॉनिटर सेक्शन है उसमें RFG और मॉनिटर दोनों ही कार्ड है। RFG क्या करता है कि generate the interrogation at the receive the channel frequency of the DME, ठीक है। The RF generate in the RFG is modulated with Gaussian shape interrogation RFG, sorry the interrogation RF यानी जो आपकी PRF है, PRF is injected to the receiver path through the forward sampling port of the directional coupler in the antenna path. The directional coupler having a coupling ratio of -20 dB. तो ये क्या करता है, 20 dB का एटेन्यूएशन करके कनेक्ट कर देता है सिग्नल के साथ। In the dual channel DME जो कि हमारे यहाँ सब जगह यूज हो रही है, dual monitor configuration, each monitor interrogates both the transponders, i.e. the main equipment and the standby equipment. The interrogation from the RFG1 and RFG2 are divided equally in a 3 dB half power
का जो कंबाइनर है उसमें होती है। हाफ हाइब्रिड कपलर एंड applied to the forward sample port of the directional coupler. RFG1 and RFG produces the interrogation alternatively. The RFG module contains the oscillator circuit, modulator, amplifier, and digital attenuators. Gaussian shape signal from modulation is generated in a monitor module and applied to the RFG. The interrogation at various power levels required for different parameters measured are achieved by the digital attenuators in the RFG. The RFG operates under the control of monitor module. All the timings and the other effects of interrogation is controlled by the monitor module microprocessor. Frequency of the interrogation signal and pulse characteristics are also measured by the monitor module. Means ये सारी चीजें करता है, कैसे करता है वो अपन ने डिस्कस किया, ये आप देख लीजिए। इसमें कोई मतलब बेसिकली क्या है, टेस्ट सिग्नल जनरेट करता है और एंटीना की केबल में डाल देता है। मतलब आपका जो है ना वो सबसे डीपीयू कार्ड है, वहां से फिर ये पिकअप होकर वापस आ जाती है मॉनिटर के थ्रू। तो ये पता चलता रहता है कि आपका सिग्नल लाइव है और अचानक लोड आएगा तो ये क्या करेगा, जैसे है ना आपकी आपने दो चीजें देखी होंगी। जब आप फ्रंट पैनल खोलते हो इक्विपमेंट का तो उसमें दो चीजें आती है, एक आती है पीआरएफ और एक आता है डिकोडेड पल्सेस। किसी ने ध्यान दिया है वो दो चीजें क्यों आती हैं? दोनों ही चीजें एक ही अलग अलग वैल्यू क्यों आती है उसकी? जो लोग काम कर रहे हैं उसको आइडिया होगा इस चीज का। इक्विपमेंट का फ्रंट पैनल जब खोलते हो या इक्विपमेंट पे जाते हो कंप्यूटर से कनेक्ट करके, तो मेन स्क्रीन जो आती है इसकी, किसी ने उस पर ध्यान दिया है? एक मिनट मैं देखता हूँ अगर मेरे पास है तो। इसमें दो वैल्यू आती है पीआरएफ, जब आप चेक करते हो कंप्यूटर से कनेक्ट करके डीएमई को, तो उसमें दो आती है, एक आती है गॉसियंस और एक आती है मतलब एक तो आती है डिकोडेड पल्सेस यानी जो एयरक्राफ्ट से आ रही है, क्वेरीज हैं। उसके अलावा एक आती है पीआरएफ टोटल, तो वो होती है आपकी, ये क्या बोलते हैं, पीआरएफ आरएफबी जनरेटेड प्लस दूसरी, दोनों कंबाइन होकर के वैल्यू आती है। तो आप देखिएगा आपके जब भी आप लॉगिन करते हैं कंप्यूटर पर तो दो वैल्यू आती है, पीआरएफ और डिकोडेड पल्सेस करके। तो ये वाइवा का बड़ा वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पूछा जाता है अक्सर कि भाई ये दो क्यों आ रही है एक ही इक्विपमेंट की। तो उसमें गॉसियंस होती है, मतलब आपकी पीआरएफ की जो जो क्या बोलना चाहिए, मिनिमम जो जनरेट करता है सिस्टम ताकि आपका सिस्टम लाइव रह सके, उसके लिए होती है। बाकी जो इंटेरोगेशन है दोनों का कंबाइन, उसमें दो वैल्यू होती है ना। कभी भी आप ध्यान से देखेंगे जब साइट पर जाएंगे, मेरे पास अभी मुझे नजर नहीं आ रही कोई स्क्रीन जिसमें वो दे रखा हो वैल्यू। जब आप पीसी से कनेक्ट होते हैं डीएमई के अंदर तब ये वैल्यू आती है। मैं देखता हूँ अगर मेरे पास है तो। भाई अभी मैं साइट पर नहीं हूँ, मैं बाहर बैठा हुआ हूँ तो मेरे पास वो स्क्रीन नहीं है। लेकिन आप जब भी लॉगिन करते हैं तो दो वैल्यू पीआरएफ आता है और एक और आता है, एक आता है डिकोडेड पल्स, तो वो थोड़ा देखना, आप समझिए उस चीज को। ठीक है, और किसी की कोई क्वेरी हो? No response is observed. May I think that whatever I have thought is understood by you, or any other query is there? Any problem? Station related problem? क्योंकि वेस्टर्न रीजन में मैंने कम से कम 2017 में मैंने 9 डीएमई लगाई थी। अगर आपका भावनगर में त्रिपाठी जी थे उस टाइम पे, शायद आजकल इंदौर है भोपाल है, त्रिपाठी जी लाइन पे भी थे, मैं देख रहा था। तो ही उन्हें त्रिपाठी जी आप कहाँ हैं आजकल? तो मुझे ध्यान आ रहा है वहां पे पावर सप्लाई का कुछ इशू था।
देन भावनगर का था शायद, हाँ भावनगर का था, उसके अलावा कनेक्टिविटी का था कांडला में। देन प्रॉब्लम हमने अटेंड की थी बात। देन और भी स्टेशन पे पीआरएफ से रिलेटेड काफी सारे स्टेशन पे प्रॉब्लम थी, राइजिंग टाइम, फॉल टाइम की, और 2-3 पे अभी भी शायद है। तो आप किस तरह करना है हमने डिस्कस किया। सर एक बात पूछनी थी सर। हाँ नागपुर से बोल रहा हूँ सर, महेंद्र सर भी। हाँ जी बोलिएगा। सर ये जो नए वर्जन में है, इसमें आईपी सीरीज चेंज कर दी गई 172 डॉट समथिंग। तो हाँ हाँ कोई इंटेंशनली की गई है कि बस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से वैसा होकर आई थी? क्योंकि जब हम इसको अगर इंटीग्रेटेड सीरियल पोर्ट से जब लाते हैं सेम हाँ मीडिया से, या मान लीजिए हाँ ओएफसी से जब ड्यूआर के साथ, तो हमें दो मुक्साज यूज करने पड़ जाते हैं सर, क्योंकि दोनों की सीरीज सुनो अलग है। तो सुनो 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 सुनो, एक जी, काम करो, 192 वाली सीरीज पे भी वो काम करता है। अच्छा काम करता है, हम लोग लेकिन जो, सारे हमें फिर हाँ उसके इसमें आरसीयू से लेके सारे आईपीस हमें चेंज करने पड़ेंगे। नहीं नहीं, ये आप एक काम करो ना, डिफॉल्ट जो है ना 172 की जगह पे आपका जो लैन पोर्ट है ना, हाँ जी। लैन पोर्ट पे आप डाल देंगे तो 2 आईपी की उसमें एक ऑप्शन होता है कि दोनों को आप रीड कर सकते हैं, तो उस लैन तरह से पोर्ट आप में कर तो सकते हैं। चलता है सर, बट ये जो नया सर्कुलर आया है अभी 2 ऑफ 24 में, तो जिसमें लैन पोर्ट ना यूज किया जाए, ये एज फार एज पॉसिबल आरसी आरएस 232 से नहीं, लाया जाए। वो आप सही कह रहे हैं, वो मैंने देखा था मेरे स्टेशन पे भी, वो एक प्रॉब्लम बेसिकली आया था, बट जी हाँ। देखा जाए तो इथरनेट इज द मोस्ट सेफेस्ट वे टू, मतलब पूरा वर्ल्ड इथरनेट की तरफ जा रहा है हमारे यहाँ, लेकिन हेडक्वार्टर से आया, मे बी सम रीजन वी आर नॉट अवेयर विद दैट, क्योंकि करेक्ट सर। सीरियल से लिया है, वी आर नॉट अवेयर, क्वाइट पॉसिबल वी आर नॉट अवेयर विद दैट, बट हुँ। पूरा वर्ल्ड अभी इथरनेट पे जा रहा है, हम वापस सीरियल की तरफ जा रहे हैं, व्हाट मे एवर बी द हाँ, रीजन। बट वो ठीक है, थोड़ा कोई ऑकवर्ड बात नहीं है, लगता है, उसमें बट भी अब कोई इशू जैसे नहीं है। हाँ, आप है ना, हाँ। जैसे उस केस में क्या है ना, अगर आप सीरियल में जा रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो क्या है कि आप सीरियल से इसको कन्वर्ट कीजिए आप ईथरनेट में, या हुँ। उस जो भी आपकी चीज़ है उसमें कन्वर्ट कर लीजिए और फिर उसको ले आइए पूरे सिस्टम को। आप पूरे तो वही तो सिस्टम को समझ ही नहीं आप आता है, जब ईथरनेट पे सीरियल से हम सीरियल इथरनेट पे में चलाइए, कन्वर्ट ईथरनेट करते को हैं, बाहर निकाल दीजिए। तो हमें एक्सटर्नल मुक्सा यूज़ करना पड़ेगा, जिसको हमें आईपी देना होगा। तो अब हम हाँ, बिल्कुल। डीओआर के लिए अलग यूज़ कर रहे हैं, जो 192 सीरीज़ की आईपी पहले से दी दे हाँ, रखी है, वो आपको और एक काम डीईएमएस कीजिए ना, जो आप 172 वाला। 192 की जगह उसको ही 172 कर सकते हैं। मतलब या फिर इसकी आप चेंज कर सकते हैं सीरीज़ को पूरी की। इसमें प्रोसीजर दिया हाँ, हुआ है, मुझे अगर आप नहीं पता मैनुअल था ये पढ़ेंगे तो वाला। मैनुअल में सब दे रखा है। एक है ना मैनुअल में, एक अलग से मैनुअल है, 3 मैनुअल आई है चेंजिंग दे कंपनी की रखी है तरफ उसमें, से। हाँ, चेंजिंग दे रखी है, बट वही समझना चाह रहा था कि इन्होंने क्या पर्पसली वो दी है सीरीज़, नहीं, वो या बाय किसी डिफ़ॉल्ट हुआ है, वो एक्चुअली पर्पसली नहीं दिया, वो असल में क्या है, कोई सीरीज़ लेनी थी तो उन्होंने ले लिया, है ना? क्योंकि मैं तो अभी दोनों यूज़ कर रहा हूँ अहमदाबाद के अंदर, वीओआर का, मैंने वीओआर की एफटी की थी तो मुझे ध्यान है। हम जी, 192 वाली सीरीज़ पर ही ईथरनेट पे लेकर के आ रहे हैं। उसके ओके। अलावा ओएफसी में तो हमने क्या किया है कि हमने ओएफसी पे डायरेक्ट जो है सिग्नल को उठा करके लैन पे दिया, वहाँ से लैन से कन्वर्ट करा के उसे मुक्सा पे दिया है और ओएफसी पे लेके जा रहे हैं। तो जी। ओएफसी पे ले जाने से वो पर्पस, मतलब आपका जो LAN से लेने से लाइन तो का जो पर्पस सॉल्व हो जाता है सर, वो तो डायरेक्ट ही ले वो लेता है, खत्म हो बिकॉज़ गया। उसमें कोई कन्वर्जन सारा नहीं रिस्क खत्म हो जाता है ऑटोमेटिकली, है ना? है। जी, जी, जी। और उसके आरएस अलावा 232 लेने में आता हाँ, है। बोलिए। नहीं ठीक है सर, जो आपने कहा वो सही है, बिकॉज़ है वो ना, दोनों ऑप्शन पे अपन काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है और जी। दोनों ही मैंने कनेक्ट कर रखे हैं यहाँ पे एक साथ ही। तो हुँ। ये बहुत बढ़िया किया इन्होंने, नया वर्ज़न जो डीएमई का आया है या वीओआर का आया है, इसमें ईथरनेट का सपोर्ट देने से काफ़ी चीज़ें ईज़ी हो गई हैं। अगर आप जैसे स्टेशन पे कहीं से कुछ लेके आ रहे हो, इवन दो दूसरे स्टेशन के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, इवन दो फैक्ट्री के साथ भी आप कर सकते हो और एसएमई हुँ। को भी आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो, अगर जी आपकी हाँ, साइट पे इंटरनेट हो तो, जी हाँ, है ना? जी। जी। तो बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, बिकॉज़ द परचेज़ ने इस बार, नॉर्मली अगर आप नेविट्स पे काम कर रहे हैं तो वी वर हैविंग द प्रॉब्लम दैट ऑल द इक्विपमेंट्स वर वर्किंग ऑन ओनली ऑन सीरियल अ पोर्ट। सीरियल पोर्ट। बट हुँ। इन मोपियंस अभी शायद आपको मैं अपडेट कर देता हूँ कि अभी टेंडर हुआ है आईएलएस का, जी। ठीक है? आईएलएस का टेंडर भी मोपियंस को ही गया है पूरा का पूरा। हाँ, मोपेन्स हो गया। आई थिंक अहमदाबाद में वो कुछ सेटअप कर रहे हैं सर, गुजरात में कहीं, मोपेन्स नहीं, वाले। मुझे इसका आइडिया नहीं है कुछ भी, बट जी। क्योंकि मैं अभी तो दिल्ली जो गया था मतलब तो मेरी बात हुई थी टीम इंडिया प्लानिंग में, शायद से तो वो आया बता है, रहे तो थे कि मोपेन्स ने शायद पूरा सेटअप किया है यहाँ पर। तो कहाँ 70% पर? यहीं पे असेंबलिंग सब हो गया। आई थिंक गुजरात में कहीं है, मैं नॉट श्योर, आई थिंक अहमदाबाद या कोई और सिटी है। हो बट सकता है, वी आर नॉट अवेयर विद दैट, समवेयर बट गुजरात मैं में तक चल अभी रहा है या दिल्ली गया चालू था। है। हुँ, अच्छा, मैं दिल्ली गया था तो मेरी किसी से बात हो रही थी प्लानिंग में, तो बता हुँ। रहे थे कि वी हैव परचेज्ड जैसे रशियन से आईएलएस लिए थे। हमारे यहाँ भी रशियन आके सर्वे करके गए सर, हमारा भी लगना है, तो शायद मोपेन्स ही आएगा यहाँ पर नागपुर में। मोपियंस से अभी नई परचेज में पूरा का पूरा मोपियंस का लिया गया है और मोपियंस में इन्होंने क्या किया है कि आपका सेम कार्ड जो है ना, सब आप आपस में एक दूसरे से चेंजेबल है। वीओआर पे जो ये कार्ड बहुत लगे अच्छा हैं है। आपके, उससे आईएलएस में भी लगा सकते हो आप।
ओहो But- ग्रेट ग्रेट ठीक है, हाँ मतलब आपको जैसे फ्रीक्वेंसी वाले जो कार्ड है, 3090 वाले जो कार्ड है, वो सारे के सारे आईएलएस वीओआर ये सारे के सारे इंटरचेंजेबल बनाए हैं इन्होंने। ये आपका बढ़िया। कैरियर भी सेम है। तो अगर आपका ये बेनिफिट है, लेकिन उसका ड्रॉबैक भी है कि आपका सब कुछ सॉफ्टवेयर कंट्रोल हो जाएगा। जैसे इस सिस्टम में क्या है कि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है, प्रैक्टिकली जो स्टेशन फेस कर रहे होंगे, राइस टाइम, फॉल टाइम, या जी। आपको अगर पल्स ड्यूरेशन एडजस्ट करनी है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस सिस्टम के अंदर, हाँ है ना? सॉफ्टवेयर कंट्रोल कोई दिया पॉट नहीं दिया हुआ है जिससे आप मतलब हार्डवेयर से एडजस्ट कर लें, और सॉफ्टवेयर से एडजस्ट करते हैं तो आपको एक नहीं, एक साथ 4 पैरामीटर एडजस्ट करने पड़ते हैं, तब जाके कोई एक होता है। बिकॉज़ आपको सब में एक बैलेंस लाना पड़ता है। पर्टिकुलर बैलेंस आने पर ही वो स्टेबल होता है, अदरवाइज़ क्या है कि वो अनस्टेबल रहता है। दिन भर जी। चलेगा, कुछ भी चेंज होगा तो वापस चेंज आपके अलार्म आने शुरू हो जाएँगे। तो सॉफ्टवेयर वाली प्रॉब्लम है सिस्टम में, बट ठीक है। बाकी काफ़ी रिलायबल है सिस्टम, वीओआर काफ़ी रिलायबल है इसका। डीएमई जो बाद में आई है, मतलब 2021 वाली, वो स्टेबल है। 17 में जो आई थी शुरू की नॉर्म, वो अनस्टेबल थी, उन्होंने सॉफ्टवेयर भी अपडेट किया था हमने इंस्टॉलेशन के टाइम पे। कुछ दिक्कत थी, लेकिन बाद में भी कंप्लेंट आती रही रेगुलर, पर्टिकुलरली आपके पल्स ड्यूरेशन से रिलेटेड कंप्लेंट थी स्टेशन से। बट अभी लगता है कि क्योंकि हमने रिपोर्ट भी भेजी थी कि ये प्रॉब्लम्स हैं, 2023 की जो परचेज थी उसके अंदर उनको हटा दिया गया है। काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, जहाँ उसके बाद कंप्लेंट हमें नहीं सुनाई पड़ी कहीं भी। अभी आप बता रहे हैं, मैं ये बता रहा हूँ, अभी इन्होंने आईएलएस भी लिया है, बिकॉज़ मैं कोरिया गया था तो मैं देख के आया था। दे वर वर्किंग ऑन द आईएलएस। तो वो ओके। बता रहे थे कि आपकी पावर सप्लाई सेक्शन कॉमन रहेगा, कई सारे कार्ड्स कॉमन है। मीन्स आप वीओआर के आईएलएस में, आईएलएस के वीओआर में भी लगा पाएँगे उस केस के अंदर, है ना? क्या? उसके अलावा ईथरनेट बेस है सारा का सारा सिस्टम इनका, वो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है, और सारा का सारा हॉट स्वैपेबल सिस्टम रहेगा इनका, ठीक है? So later on we will see how the system is coming. Just a basic idea I was giving because I have discussed with the company person. ठीक है? और कोई क्वेरी हो किसी की, थैंक यू। किसी टॉपिक पर, डीएमई से रिलेटेड? ठीक है सर। दिनेश जी, मैं टॉपिक कंप्लीट करता हूँ अपना यहाँ पर। अगर किसी को अभी भी क्वेरी हो तो पूछ सकता है, अदरवाइज हम इस मीटिंग को खत्म करें। आपकी परमिशन हो तो दिनेश जी। आरटीसी से अगर परमिशन हो तो मीटिंग को यहाँ खत्म करें। कोई क्वेरी नहीं है तो मुझे लगता है कि हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, जो मीटिंग का टारगेट था। थैंक यू ऑल लिसनिंग मी। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू।